دیں گے آپ کو یہاں پر یہ اہم خبر۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف پہنچ گئے ہیں جلسہ گاہ، جہاں پر وہ اس وقت خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ الرحیم، جناب محمد خان اچکزئی صاحب گورنر بلوچستان، جناب نواب ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، جناب عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر برائے سیفران، جناب احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر برائے پلاننگ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وفاقی وزیر برائے ریلویز، جناب حامد خان اچکزئی صاحب صوبائی وزیر بلوچستان، اور محترم بابو گلاب صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل گوادر، وزراء صاحبان، ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی، محترم میر اور معتبر صاحبان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے آج گوادر آ کر، اور یہاں کل ہم آئے، رات یہی رہے، بہت سارے لوگوں سے ملے، اور آج اس وقت گوادر کے بھائیوں اور بہنوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں اپنی خوشی کا کس طرح سے اظہار کروں، اور آج ماشاءاللہ جو گوادر کے عوام کو جو جوش و خروش ہے یہاں پر، مجھے اس میں بڑی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کے عوام حقیقی طور پہ آج محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ایک مثالی ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے گوادر کے لیے۔ انشاءاللہ تقدیر بدلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدل رہا ہے، اور گوادر کی ترقی ہے میرا کوئی آج کا مشن نہیں ہے، یہ کل جو گزرا ہے اس کا مشن نہیں ہے۔ 1991 میں 1991 میں جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میرا خواب تھا کہ گوادر جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین پورٹ سٹی بنے، اور اس کے لیے میں نے اقدامات اٹھائے اور پھر اس کے لیے کام شروع کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سارے رکاوٹیں آئی اور ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ 1997 میں پھر آ کر گوادر پہ ہم نے کام شروع کیا۔ مجھے کوئی بتائے کہ 1993 اور 97 میں کسی دوسرے نے گوادر کو کیوں نہیں یاد کیا؟ کیوں نہیں گوادر ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں آیا کہ بھی گوادر بھی ہمارا ایک ملک کا شہر ہے، ہمارے ملک کا علاقہ ہے، ایک ضلع ہے اور بہترین ضلع ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے؟ کسی نے سوچا آج تک؟ نہیں سوچا۔ 1997 میں آ کے پھر ہم نے آ کر نہ صرف گوادر کا دوبارہ سوچا بلکہ اس کے لیے قدم اٹھائے، اقدامات کیے، اور اس کے بعد پھر سن لو، اس کے بعد 1999 میں جب ہماری حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد پھر لوگ گوادر کو بھول گئے۔ جو ایوان اقتدار جو ہے پاکستان کا، اس نے پھر گوادر کو یاد نہیں رکھا، گوادر کے غریب عوام کو ایک دفعہ پھر فراموش کر دیا، اور پھر بس برائے نام گوادر کا نام چلتا رہا، لیکن عملاً یہاں پہ کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ
इस बात को अच्छी तरह पहचानते हैं। आप गवाह हैं इस बात के कि किसी और ने कुछ नहीं किया। आज अल्लाह के फजलो करम से हम फिर जब 2013 में आए तो सबसे पहले अगर नवाज शरीफ ने किसी शहर को, उसके वासियों को याद किया तो गवादर के अवाम को याद किया। और फिर उसके लिए अमली इक़दाम किए। आज माशाल्लाह गवादर में एक अजीब हलचल महसूस होती है। आज गवादर तरक्की की राहों पे एक दफा फिर चल निकला है और ये अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। और फिर मुझे फख्र है कि आज गवादर में शायद मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का जो रात यहां पर रहा है। इससे पहले तो रात रहना दरकिनार कोई आता भी नहीं था, लेकिन मेरा ये कितनवां दौरा है ग्वादर का, ये मैं भी शायद अभी आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने दौरे खुद गवादर के कर चुका हूं। ये है मेरा प्यार मोहब्बत गवादर के अवाम के लिए, गवादर के लिए, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, सुबह मैं एक मीटिंग में था और कल भी एक हमारी मीटिंग काफ़ी लंबी चलती रही और उसमें मुझे वहाँ पर जो हजरात आए हुए थे, दूर दराज से आए हुए थे, तो कोई कहने लगा जनाब मैं कोयटा से आया हूँ, कोई कहने लगा मैं पंजगूर से आया हूँ, कोई कहने लगा मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ, और कहने लगे कि बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा और बहुत उम्दा रास्ता था, सड़क बड़ी अच्छी थी। और फिर हम पहले पहुंचा करते थे शायद एक दिन में, दो दिन में, अब चंद घंटों में पहुंचते हैं हम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बेहतरीन बन चुकी है और इंशाअल्लाह अब ये कोयटा से आगे जा रही है, हसनबदाल तक बनेगी इंशाअल्लाह। हसनबदाल से आगे मानसेरा बन रही है मोटरवे और वहां मानसेरा से चाइना के बॉर्डर तक जा रही है। अब तो गवादर पूरे मुल्क से मिल रहा है, गवादर चाइना बॉर्डर से मिल रहा है और गवादर और फिर बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है। और मैं अभी चंद महीने पहले खुशाब के इलाके में सड़क का इफ्तिताह करके आया, गवादर होशाब और आगे क्या था, सुराब, और वो बेहतरीन सड़क बन चुकी है। इसी तरह से ये 1100 किलोमीटर की सड़कें बलोचिस्तान के अंदर बन रही हैं। 1100 किलोमीटर आज तक बलोचिस्तान में, आज तक, भाई आप बैठ जाए, शाबाश बैठे, मुझे बात कर दें। आज तक बलोचिस्तान में 1100 किलोमीटर तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि इसका 1/10वां हिस्सा भी किसी ने नहीं बनाया। और हमने उन इलाकों में सड़क बनाई है जहां दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, और जो FW ने यह काम किया है, मैं FW का शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने जाने कुर्बान की उनके लोगों ने और सड़कें बना दी उन्होंने यहां पर। और अब इन सड़कों पे इंशाल्लाह हम अमन कायम कर रहे हैं और अमन कायम करने वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, जिसमें हमारी पुलिस भी है, जिसमें हमारी इंतजामिया भी है और जिसमें हमारे अवाम भी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और सड़कें जब बनती हैं तो सड़कों से पहले तरक्की नहीं आती, सड़कें बनने के बाद तरक्की आती है। सड़कें बनने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनती हैं, सड़कें बनने के बाद अस्पताल बनते हैं, सड़कें बनने के बाद किसानों की इजनास जो हैं, उनकी फसलें जो हैं, सब्जियां, फ्रूट मार्केट में जाते हैं सड़क के रास्ते से। और सड़कें जब बनती हैं तो इंडस्ट्री आती है और किसानों की जरी तरक्की होती है तो खुशहाली आती है।
जब खुशहाली आती है तो बेरोजगारी का खात्मा होता है, बेरोजगारी का खात्मा होता है तो गुर्बत का खात्मा होता है, गरीबी का खात्मा होता है। और जब गरीबी का खात्मा होता है तो कौम जो है मजमूई तौर के ऊपर तरक्की करती है। और मैं ये बताता हूँ आपको, मैं ये कहता रहता हूँ लोगों को कि गवादर अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, गेम चेंजर। भाई यार नहीं, याद नहीं, अभी इस तरह से नहीं, इस तरह से मुझे बात करने दे, मैं तो जज्बे से बात कर रहा हूँ आज। आपका जज्बा भी बहुत शुक्रिया, नवाजिश, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज, मैं इस वक्त बड़े सरूर में हूँ अपने गवादर के अवाम से मैं मुखातिब हूँ। और मुझे लग रहा है कि गवादर के अवाम बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। और मैं भूल गया हूँ मैं क्या कह रहा था। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि सड़क जब बनती है तो भाई सब कुछ अल्लाह के फल से आता है। जब सड़क नहीं होती तो आसमान के रास्ते से अस्पताल नहीं पहुंचते, तो उड़कर स्कूल कॉलेज नहीं बनते, उड़कर यहां पर यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, उड़कर जो है वो इंडस्ट्री नहीं आती। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवादर पे जितनी तवज्जो हमारी हुकूमत की, नवाज शरीफ की, मेरे भाई चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान नवाब साहब की जो है, आज तक बताएं कभी किसी की इतनी तवज्जो हुई है? भाई खुलकर बताओ, कभी आज तक गवादर पे किसी ने इतनी तवज्जो दी है? आज माशाल्लाह जनरल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक इसी इलाके से है। हमारे दीगर जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं साहबान, वो भी गवादर के बारे में उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचता हूँ। और मैं आपको आज अभी मीटिंग की बात कर रहा था, वो भाई यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के बसने वाले लोग, उनमें से कई चेयरमैन हैं मुख्तलिफ अजला के, उनमें से कई MPAs हैं, असेंबलियों के मेंबर हैं, उनमें से दूसरे लोग भी हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये सड़कें बनी हुई हैं। अब मुझे लगा कि मैं अब टेलीविजन के ऊपर मैं पूरी कौम को दिखाऊंगा, बलोचिस्तान के अवाम को दिखाऊंगा, देखो आपके इलाके में, सूबे में ये कुछ बन रहा है, ये सड़कें बन रही हैं। गवादर से हुशाब और फिर कोयटा, और कोयटा से आगे हसनबदाल, KPK से आगे गिलगित बल्तिस्तान और चाइना बॉर्डर, ये सब मुझे अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बलोचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसमें उन लोगों को पता ही नहीं था जो बलोचिस्तान के रहने वाले हैं। मैं कहा मुझे अब दिखाना पड़ेगा। और फिर यहाँ भाई, यहाँ गवादर जहाँ हम आज खड़े हैं तो भाई ये जलसा इस तरह से नहीं कि बस हम आए, तकरीर की, आपसे मुखातिब हुए और चल बसे, जब यहाँ से वापस चले गए और फिर कोई उसके बाद पुरसाने हाल नहीं। ये नवाज शरीफ का शेवा नहीं है, ये नवाज शरीफ का दस्तूर नहीं है, ये हमारी हुकूमत का असूल नहीं है। और मैं इंशाल्लाह आज जो कह रहा हूं इस पे अमल करके दिखाऊंगा। बाज मामलात में, बाज मंसूबे में वक्त लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम जो बात कहेंगे उस पे अमल नहीं होगा, अमल होगा। और किसी के नताइज जल्द आएंगे और कुछ के नताइज बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन काम इंशाल्लाह उस पे हम शुरू कर देंगे। तो मैं आज समझता हूं कि आप जरा थोड़ी सी नजर डालें 2013 वाले पाकिस्तान पे, 2013 वाले पाकिस्तान पे नजर डालें। पाकिस्तान में जब 13 में हमें हुकूमत मिली, उस वक्त लोड शेडिंग, तबाह हाल मैशियत, खजाना खाली, सनतें और कारखाने बंद और मजदूर बेरोजगार, अवाम बदहाल, यानी ये आलम था। और दहशत गर्दी अरूज पर थी, दहशत गर्दी अरूज पर थी। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के बजाय इक्तिसादी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था, लेकिन हमने आके, हम घबराए नहीं, हमने कहा नहीं, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, हमने इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे वापस लेके आना है। और हमने बड़े अज़म के साथ ये काम शुरू किया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है, यही वजह है
کہ سی پیک جو ہے وہ صرف اقتصادی راہداری کا نام نہیں بلکہ یہ شاہراہ امن اور انسانیت ہے۔ مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ سی پیک کا بلوچستان کی سرزمین پر ہے۔ بلوچستان جو کبھی ترقی کے دور میں داخل ہونے سے محروم تھا، آج مجھے ترقی کا ہر راستہ بلوچستان سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بلوچستان انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ بلوچستان محروم نہیں بلکہ محرومیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان جس طرح سے منصوبے چل رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا اور بلوچستان پاکستان کا ٹائیگر بنے گا۔ میرے پاس تفصیل ہے کہ کہاں کہاں سڑکیں بنی ہیں بلوچستان میں اور بن رہی ہیں، لیکن وہ چونکہ لمبی تفصیل ہے، 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بن رہی ہیں بلوچستان میں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس تفصیل لمبی ہو جائے گی اور کچھ دوسری امپورٹنٹ باتیں میری رہ جائیں گی، تو میں پڑھتا نہیں ہوں، میرے سامنے پوری تفصیل موجود ہے، اور پھر جو یہ مجھے بتاتی ہے ساری تفصیل، جو میں روز اسلام آباد میں اس کے بارے میں جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ میرا کوئی ایسا دن نہیں خالی رہتا، ایسا دن نہیں گزرتا جب اسلام آباد کے اندر ہم بلوچستان اور پھر گوادر کی بات نہ کر رہے ہوں۔ روز بلوچستان اور گوادر ہمارے ایجنڈے پہ ہوتا ہے، ہمارے پروگرام پہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا لیکن ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، فروری 2016 میں گوادر تربت خوشاب موٹر وے مکمل کی گئی، اور 2016 میں ہی کلات چمن شاہراہ مکمل کی گئی۔ ان دونوں سڑکوں پر اربوں روپے خرچ آئے، یعنی 19 ارب روپے خرچ آئے۔ لیکن یہ 19 ارب کیا چیز ہے بلوچستان کے لیے؟ قربان ہے بلوچستان کے عوام پہ، قربان ہے۔ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہم ماضی کا قرض چکا رہے ہیں بھائی، ماضی کا قرض چکا رہے ہیں، کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہے۔ اور پھر بسیمہ پنجگور خوشاب شاہراہ کو 18 ارب روپے سے زائد رقم سے مکمل کیا گیا، اور یہ تقریباً 450 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، 450۔ خزدار رتو ڈیرو شاہراہ بھی جون 2016 میں مکمل کی گئی، اور صرف ان چار منصوبوں کا اگر ذکر کیا جائے تو بلوچستان میں 3 سال کے دوران میں ہونے والا اتنا بڑا ترقیاتی کام پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں آپ کو جو بلوچستان جو کہ جغرافیائی طور کے اوپر ایک دشوار گزار اور تھوڑا سا ناہموار علاقہ ہے، مگر ہمت اور عزم کے ارادے کے سامنے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوتی، تو خزدار بسیمہ روڈ 110 کلومیٹر، یکمش خاران روڈ 200 کلومیٹر، اور پھر قلعہ سیف اللہ ویگم روڈ 128 کلومیٹر، راکھی گاج بیواتا روڈ 32 کلومیٹر، اور یوب مغل کوٹ 81 کلومیٹر یعنی 81 کلومیٹر، اور یارک یوب 2010 کلومیٹر۔ یہ طویل سڑکوں پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ سڑکیں مکمل ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے بلوچستان ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہوگا جب یہ ساری سڑکیں مکمل ہوں گی۔ سب زیر تعمیر ہیں، یہ سب اس وقت بن رہی ہیں، اور شاید ان علاقوں کے رہنے والوں کو ہی پتا ہوگا، ارد گرد کے لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہزاروں کلومیٹر طویل سڑکیں اب شروع ہو چکی ہیں اور بنیں گی انشاءاللہ۔ اور
मकामी तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की का ज़रिया इंशाअल्लाह ये बनेंगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार, जैसे मैंने पहले कहा कि अब बलूचिस्तान पर होगा। तो इसमें पावर प्लांट्स यहाँ पे लग रहे हैं, बिजली यहाँ पर नापैद थी, बिजली नहीं थी। लोग क्या करते हैं भाई, ना बिजली, जब बिजली नहीं होती, जब यहाँ पे पीने का पानी ही नहीं है, साफ पानी नहीं है, और जब यहाँ पर अपना कोई यहाँ पर खुदा न खासा दहशत गर्दी थी और यहाँ लोग एक दूसरे का गला काटने के चक्करों में फिरते थे, तो आज तरक्की जब हो रही है तो इंशाल्लाह ये सब लोग भाग रहे हैं, भाग जाएंगे इंशाल्लाह, और हम भगाकर दम लेंगे वो लोग जो इंसानों का खून करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सड़कें नहीं भाई, यहाँ पे बिजली के कारखाना अब लगना शुरू हो रहा है, जो ना सिर्फ यहाँ गवादर में बिजली देगा बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों को भी बिजली देगा। और 300 मेगावाट का बिजली का कारखाना अब काम शुरू उस पे हो जाएगा, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके अंधेरे छट जाएंगे, आपके अंधेरे दूर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज मैं आपको सामने जरा गवादर की कुछ और एक दो बातें जो है वो कर लूं। अभी आपके सामने जनरल अब्दुल कादर साहब ने बात की है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन साहब ने बात की है, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने बात की है, और मैं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को यकीन दिलाता हूं कि नवाब साहब, बलूचिस्तान की तरक्की में मैं इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़ा हूं। आप कदम बढ़ाएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कदम बढ़ाऊंगा। बल्कि आप यहां कह रहे हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तो कदम बढ़ाओ ज़हरी, नवाज शरीफ तुम्हारे साथ है। और ज़हरी साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला के एक वज़ीर आज़म वज़ीर आला के एक ताल्लुक़ होता है, लेकिन मेरा इनके साथ एक भाईचारा का ताल्लुक़ भी है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं इंशाल्लाह हर कदम पे अल्लाह के फजल व करम से इनकी पूरी मदद करूँगा ताकि ये सुरखरू हो सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, सुन ले ज़रा गौर से, ये ज़रूरी बातें हैं, चंद एक आप सुनेंगे तो शायद आप खुश होंगे इंशाअल्लाह इससे। वो ये है, यहाँ पर मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास है कि आज गवादर की जो ज़मीनें सोने से भी ज़्यादा कीमती हो चुकी हैं, वो मुल्क भर के सरमायाकारों ने बहुत मामूली कीमतों पे ख़रीदी थी, और आज उन ज़मीनों से अरबों करोड़ों का फ़ायदा उठाने वाले ये मकामी लोग नहीं हैं। अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो ज़रा मुझे बताना भाई, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मकामी लोग नहीं हैं। अगर मकामी लोग नहीं तो ज़रा मुझे ताली बजा के बताओ कि वाकई मकामी लोग नहीं हैं। जो ताली नहीं बजा रहे वो ज़रा उठ के खड़े हो जाएं, ताकि मुझे पता लगे कि नहीं, वो ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो फिर खड़े ना हो बल्कि फिर दोबारा ताली बजा के मुझे बताएं। देखें, सब लोग जो है वो बिल्कुल इसकी तस्दीक कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो अरबों खरबों करोड़ों का फ़ायदा उठाने वाले लोगों में मकामी लोग शामिल नहीं हैं। अभी मैं सरदार साहब से, अपने भाई जो है ना, उनसे बात करना चाह रहा था, ज़हरी साहब से, लेकिन मेरे जहन में बैठे बैठे ये ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने भी इसका जिक्र किया, जनरल साहब ने भी जिक्र किया, चेयरमैन साहब ने भी इसका मिलता जुलता जिक्र किया, लेकिन ये मेरी बात, मेरे बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात आ रही है। तो मकामी लोगों को क्या मिला? बेचारे वो तो जूं के तू हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जब लोगों को मालूम हुआ कि अब गवादर तरक्की करने वाला है तो ज़मीनें ख़रीद लो भाई, और ये ज़मीनों पे हाउसिंग स्कीमें बनाएंगे, या इसको फिर हम बहुत महंगे दामों पे बेचेंगे, या हुकूमत को बेचेंगे, या प्राइवेट
इन्वेस्टर्स को बेचेंगे, तो उसमें मकामी लोग तो बेचारे, उनको अगर 50,000 की मालियत पहले कोई ज़मीन थी तो अगर उनको लाख 1.5 लाख मिल गया तो वो तो उन्होंने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा। लेकिन आज वही लाख 1.5 लाख की ज़मीन जो है वो 1 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। तो ये मैं समझता हूँ यार, ये हमारे बड़े सादे लोग हैं और सादे लोग बेचारे पीछे रह गए और बाहर से आने वाले आगे निकल गए, तो ये बात मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इन ज़मीनों के असल मालिकान को भी गवादर की तरक्की में हिस्सा मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि वज़ीर आला और मैं और वज़ीर आला मिलकर और हमारे साथी मिलकर, जैसे कि गवर्नर साहब है वो भी इसमें बैठें, चेयरमैन भी बैठें गवादर के, और फिर गवादर के और भी बाकी लोग बैठें जो समझदार हैं, इसका कोई हम हल निकालें कि यहाँ के असल बाशिंदों को इसका मुआवजा मिले, इसकी कीमत उनको जो है उसका हिस्सा मिलना चाहिए और इसकी कोई राह निकलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं इस मुशावरत को जल्द से जल्द करूँगा वज़ीर आला के साथ और अपने बाकी रफ़ाक़ा के साथ, ताकि ये नाइंसाफ़ी जो है, ये नाइंसाफ़ी का खात्मा हो सके। आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, मेरी इस बात से, तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं आप लोग? ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सोच मेरे दिल के अंदर समाई हुई है, उसी जज्बे से मैं ये बात कर रहा हूँ। ये मैं बड़े दर्द दिल से ये बात आपको कर रहा हूँ और आपके खुलूस और आपकी बेहतरी के लिए और आपकी औलादों के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा ये मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। हम अपना जो है वो अब दूसरे जो कुछ मामलात हैं, 2-3 हैं और मैं जो है वो उसको जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मकामी लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना बहुत अज़हद ज़रूरी है और उसके लिए यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने ये अभी यासन इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर भाई यूनिवर्सिटी जो है वो जल्द से जल्द गवादर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। गवादर यूनिवर्सिटी, गवादर एक यूनिक ज़िला होगा पूरे मुल्क में कि एक छोटा ज़िला है, दूर दराज का ज़िला है, लेकिन वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद की बाकी यूनिवर्सिटियों को भी मात कर दे, उनको भी पीछे छोड़ दे, ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए। वहाँ से बजाय इसके कि गवादर के लोग वहाँ जाके पढ़ें, इस्लामाबाद के लोग, बाकी शहरों के लोग आके गवादर में पढ़ें और यहाँ पे आके एजुकेशन हासिल करें। लेकिन इसके साथ साथ वो तो अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने आपको ये खुशी की खबर मैं बताना चाहता हूँ कि शाबी मौज़ा है, शाबी, वहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन हमने ख़रीद लिया यूनिवर्सिटी के लिए। 500 एकड़ ये ज़मीन खरीद चुके हैं और मैंने अभी ये आसन इकबाल साहब को कहा है कि जो अगला बजट जो आने वाला है, जो कि इंशाअल्लाह ताला जो 2-3-4 महीनों में इंशाअल्लाह आ जाएगा, उसमें आप कम से कम यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपया जो है वो ग्रांट रखें, 100 करोड़ रुपए, ताकि यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू हो जाए। और फिर जितनी जल्दी करेंगे उतने पैसे साथ साथ हम देते चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम चीन के साथ मिलकर सीपैक में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर करेंगे और फिर वहाँ पर और दूसरे अस्पतालों पर में भी हम इंशाअल्लाह ताला गवादर के लोगों को, ज़िला गवादर के लोगों को हेल्थ कार्ड जारी करेंगे, हेल्थ कार्ड, ताकि गरीबों का
गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, मुफ्त। अगर किसी को कोई छोटी बीमारी है और खुदा न खास्ता को बड़ी बीमारी है, दिल की तकलीफ है, गुर्दों का मसला है, या फिर खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, तो उसका इलाज, उसकी जो खर्चा है, अखराजात, उसकी जेब से नहीं, सरकार की जेब से जाएंगे और उसका इलाज होगा। लोगों को इलाज मुआवजे के लिए जायदादें बेचनी पड़ती हैं, घर बिक जाते हैं। बेटा बीमार है, इलाज के लिए जेब में पैसा नहीं है। बेटी बीमार है, वालिद बीमार है, इलाज के लिए जेब में पैसा नहीं है। राह देखते हैं, देखते सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर कोई जमा पूंजी है तो उसको बेचना पड़ता है। छोटा सा घर है, अगर छोटा सा बिल्कुल मामूली सा घर भी हो तो उसको बेचना पड़ता है। जिंदगी भर के लिए उधार लेना पड़ता है, जिंदगी भर उधार उतरता नहीं है। क्या फायदा उस मुल्क के अंदर रहने का जहां इलाज के लिए, छोटे से इलाज के भी जो है वो पैसा ना हो और लोगों को अपनी जायदादें बेचनी पड़े। तो इसलिए हमने फैसला किया कि इंशाअल्लाह वो लोग जो इलाज कराने का इस्तेदाद नहीं रखते, कुव्वत नहीं है, उनको हुकूमत स्टेट एक्सपेंस के ऊपर, सरकारी अखराजात के ऊपर उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें पेश करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इलाज जो है, अगर तो कोई यहाँ का रहने वाला, गवादर का रहने वाला जो है, उसको कोई बीमारी लाहक हुई है, अगर गवादर का अस्पताल वो इलाज करने से कासिर है, नहीं कर सकता, तो उसको ये भी सहूलत साथ फराहम की जाएगी कि वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, किसी जगह पे भी जाके मुफ्त इलाज करा सकता है। यहां पर पानी पीने का नहीं है। ये जिस होटल में मैं ठहरा था, वहां पे भी लिखा हुआ था कि दिस वाटर इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी ये पानी पीने के लायक नहीं है। वो होटल का पानी पीने का अगर लायक नहीं है तो इन गरीब बस्तियों के पानी का कैसे पीने के लायक हो सकता है। तो हमने ये फैसला किया है, मैंने मशवरा किया है अपने वज़ीर आला से, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, एक तो भाई ये जो CPEC में एक साफ पीने का पानी का प्रोजेक्ट लगने वाला, जिसको कहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट। डिसैलिनेशन प्लांट का मतलब ये है कि वो पानी इंशाअल्लाह ताला पीने का फराहम करेगा और वो बेहतरीन पानी होगा, जैसे ये बोतलों में पानी होता है, उस क्वालिटी का पानी इंशाअल्लाह वो बनाकर तो लोगों को घरों तक पहुंचाएंगे हम इंशाअल्लाह। अगर उसमें ताखीर है, गवादर के मेरे भाइयों बहनों, मेरी बच्चियों और नौजवानों, आपको इंशाअल्लाह ये जो पीने का पानी जो मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक आपका मसला हल होगा। मैं तोहफा नहीं कहता, क्योंकि अपने अवाम के लिए कुछ करना ये तोहफा नहीं होता, ये खिदमत है, ये फ़र्ज़ है मेरा, और आपका हक है, हक मेरा फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो मैंने अपने भाई सनाउल्लाह ज़हरी साहब से मशवरा किया है, हम मिलकर इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह ये फौरी तौर के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाने का फैसला कर रहे हैं। जो CPEC में आएगा वो इंशाअल्लाह आएगा, लेकिन अगर उसमें ताख़ीर है तो इसके ऊपर काम हम फौरी शुरू करने वाले हैं, और हम इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये बहुत जल्द ये मंसूबा मुकम्मल करके गवादर के रहने वालों को ये पीने का साफ पानी जो है वो फराहम किया जाए। इस पे तकरीबन मुझे मालूम नहीं है 5 मिलियन गैलन यानी 50 लाख गैलन पानी इंशाअल्लाह बनेगा इसमें यौमिया हर रोज़ 50 लाख गैलन।
یہ اس سے بھی کئی گنا لیٹر میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ چلا جاتا ہے, 4.5 لیٹر کا ایک گیلن ہوتا ہے. تو یہ تقریباً سمجھیں آپ 2-2.5 لاکھ لیٹر روز پانی بنے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور بہت جلد, اور اس پہ 5 غالباً مجھے یقین نہیں, سوری ابھی یہ پورا اس پہ مجھے فگرز کے اوپر کوئی اتنا نہیں ہے, لیکن 5 ارب روپے یعنی 500 کروڑ روپے خرچ ہوگا جو انشاءاللہ ہم اس کے لیے رقم فراہم کریں گے. گوادر کے 50 نوجوانوں کو, حسن اقبال صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور بالکل طے ہو گیا ہے, گوادر کے 50 نوجوانوں کو چینی زبان, چائنا کی زبان سیکھنے کے لیے ہم ان کو چائنا بھیجیں گے, چین بھیجیں گے. اس میں بچیاں بھی شامل ہیں, لیڈیز بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں. اور بچیوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی پڑھو لکھو, آپ بھی قابل بنو, ملک کی تعمیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالو بڑھ چڑھ کے. آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے یہ آدمیوں سے, اور پھر مجھے یقین ہے کہ بازی لے جائیں گی ہماری بیٹیاں اور بہنیں, بازی لے جائیں گی ہمارے نوجوانوں پہ, کیونکہ یہ زیادہ قابل ہیں, دل لگا کے پڑھتی ہیں اور محنت کرتی ہیں. اور انشاءاللہ میں اپنی بچیوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی تیاری کریں اور یہ زبان سیکھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, چین. تو آج آپ چین جا رہے ہیں اور دین کے حکم کی بھی آپ تعمیل کر رہے ہیں, اور چائنا جا کے آپ پڑھ رہے ہیں, چین. تو ہم انشاءاللہ آپ کو زبان سیکھنے کے لیے بھیجیں گے. یہ غالباً 1 سال کا ہوگا کورس, 1 سال کا کورس ہوگا, اور یہ اس کے لیے حکومت پاکستان آپ کو وظائف فراہم کرے گی, وظیفہ دے گی. اسی طرح سے میں اپنا اس وقت, وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے دوسرا جو میں نے پہلے کہا تھا, لیکن اس وقت جو ہے گوادر کے جو طالب علم ہیں, طالبات ہیں, جو بہت اچھی یعنی کہ اچھے میرٹ والے جو لوگ ہیں, ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں ان کو داخلہ دیں گے. اس کا انشاءاللہ 50 سٹوڈنٹس کو ہم ملک کے مختلف یونیورسٹیوں میں داخلہ دیں گے. حسن اقبال صاحب اس کا اہتمام کریں گے, اور ہائر ایجوکیشن والوں کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں حسن اقبال صاحب کے ذریعے سے کہ یہ اس کی فوری امپلیمنٹیشن, اس میں فوری طور کے اوپر جو اس کو امپلیمنٹ کروائیں. 50 طالب علموں کو, جس میں بچیاں بھی شامل ہیں, ان کو پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ دلایا جائے گا. اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ مجھے بتائیں گے کہ داخلہ ملا یا نہیں ملا, اور یا وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ داخلہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے, اور میں حسن اقبال سے پوچھوں گا کہ داخلہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے. اور اگر حسن اقبال صاحب اگر پکڑے گئے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر حسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. اور اگر پورے ہو گئے تو اگر جو بھی پکڑا گیا, پھر اگر حسن اقبال اس میں سے سرخرو ہو گئے تو حسن اقبال کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا. اچھا بھائی, اب جو گلیاں ہیں یہاں کی گوادر کی, آج میں صبح ہیلی کاپٹر میں بھی گیا ہوں اور میں نے یہ سارا علاقہ ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے. گوادر شہر کی گلیوں کو بھی دیکھا ہے, کچے گھروں کو بھی دیکھا ہے, اور یہاں کے سیوریج کو بھی دیکھا ہے میں نے. تو حال پتلا ہے. تو اس کے لیے گلیوں کی بہتری کے لیے, سڑکوں کی بہتری کے لیے, سیوریج کی بہتری کے لیے
میں اس کے لیے 100 کروڑ روپے کے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں. 100 کروڑ روپیہ. اور اس کے لیے جو ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور چیئرمین صاحب جو ہے مقامی جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے, جس کی سپرویژن جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کریں گے. اور انشاءاللہ پھر میں آؤں گا, آ کے میں دیکھوں گا کہ گلیوں کا اب کیا حال ہے. جب بن جائیں گی خود پیدل آؤں گا انشاءاللہ آپ کی گلیوں میں, آپ کی گلیوں کا میں پیدل چکر لگاؤں گا اور دیکھوں گا آ کے کہ اب. اور میں چیف منسٹر صاحب جناب زہری صاحب انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ آپ کو 100 کروڑ روپے مل جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ براہ کرم آپ گوادر آپ آئیے اور اس کو دیکھیے کہ یہ کس طرح سے خرچ کرنے کا پروگرام ہے, اور ان کی بہتری کے لیے, گوادر کے عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے آپ اس پیسے کو جلد سے جلد اس کو خرچ کریں اور اس سے تاکہ یہ فائدہ اٹھا سکیں. اور باقی بجلی بھی آئے گی انشاءاللہ, آپ کو میں نے بتایا ہے بس بھائی. اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی انشاءاللہ آئے گا, بجلی بھی آئے گی, ترقی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ, سڑکیں بھی پہنچ رہی ہیں. تو انشاءاللہ گوادر کے اور بلوچستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. بلوچستان کے وارے نیارے ہوتے ہیں, گوادر کے وارے نیارے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ پاکستان کے بھی اور نواز شریف کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ ہے, میں اپنے دل سے آج میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں, بڑی محبت میں, بڑے پیار کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں. یہ جذبہ میری دعا ہے اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے, اور یہ پیار ہمارا اللہ تعالی ہمیشہ برقرار رکھے, تاکہ ہم آپ کی خدمت کے لیے دن رات محنت کریں, کام کریں, اور یہاں صورتحال کو اللہ کے فضل و کرم سے بدل دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے, پاکستان. ایک نعرہ پاکستان کا, دوسرا بلوچستان کا. پاکستان, بلوچستان اور گوادر. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نواز شریف موجود ہیں گوادر میں. جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور جوشیلے انداز میں آج انہوں نے اپنا خطاب یہاں پر کیا, اور انہوں نے کہا بات آج کی حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ, تباہ الخزانہ, صنعتیں بند اور دہشت گردی عروج پر تھی. سڑکوں کے بعد اسکول, کالج اور اسپتال بنتے ہیں. ہم نے بڑے عزم کے ساتھ ملک کو ٹریک پر لانے کی کوشش کی ہے.